Welcome back to my channel. I hope everybody is doing good and are safe at their place. Guys, please take care of yourself during this pandemic period. Okay? And now let's begin our today's video, which is all about consumer equilibrium. In my previous parts, I have discussed about the concept of IC curve, its properties and budget line. Now, we'll see what is consumer equilibrium. First, we'll go through the definition, then we'll understand what are the two conditions of consumer equilibrium in case of indifference curve. Okay, moving ahead. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले भी बताया है. कंज्यूमर कौन है? कोई भी हु इज कंज्यूमिंग द गुड इन द इकोनॉमी. ओके, और इक्विलिब्रियम क्या होती है इकोनॉमिक्स में? द स्टेबल पॉइंट. ओके, सो दिस विल बी रेफर्ड एज टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर. उसकी वो चॉइस कि हमने आईसी में अजम्पशन की थी कि देयर आर टू गुड्स एंड गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ओके, सो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करेगा कंज्यूमर. सो हियर दिस कंडीशन विल बी द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर एट विच ही विल गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. जिसको जिस कॉम्बिनेशन को उसको कंज्यूम करके हिल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टू डिफरेंट कंडीशंस इन केस ऑफ IC which is indifference curve. Indifference curve के केस में दो कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या है? The very first condition is MRS of X and Y. Okay, so MRS क्या होता है हमारा? Marginal rate of substitution in case of good X and good Y or good 1 or good 2. Okay, MRS should be equal to the price of X or good 1 by price of good 2 or price of Y. Okay, Therefore, इसको हम दूसरे वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? दैट स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी क्या होते हैं हमारे? MRS. ओके, शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, और बजट लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन. ओके, तो अगर जब हमारा स्लोप ऑफ आईसी विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, और दिस सिचुएशन विल सेटिस्फाई, इट विल लीड टू द कंडीशन नंबर 1 ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ओके, moving ahead, second important condition here is IC should be convex to the origin. ये तो आपको पता ही है, IC की शेप क्या रहेगी हमारी? कॉन्वेक्स. एंड बाय नाउ यू गाइज आर अवेयर कि इसके पीछे का रीजन क्या है. इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू रिटेन द कॉन्सेप्ट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑफ यू टू go to the previous part and go through the properties of IC so that you can understand the condition of consumer equilibrium here. Okay, I am repeating once again. Case of IC, case of indifference curve, there are two conditions for consumer equilibrium, which is one is slope of IC should be equal to slope of budget line or price line, and second is IC should be convex to the origin. Now moving to the diagrammatic representation of consumer equilibrium. As you all know, हमारे y axis पे हमने क्या लिया? good 2, and x axis पे हमारा good 1 रहेगा. AB is our budget line or the price line. Okay, and this curve is our IC curve. Okay, so the point where this IC curve and the budget line will be meeting. Okay, at this point the slope of budget line and the slope of IC curve will be equal, and this curve is convex to the origin. Origin क्या है हमारा? इसका ये बेस है, इसके convex है ये. Therefore, these two conditions will lead to the point of equilibrium, which is known as consumer equilibrium. Okay, so मैंने यहाँ condition फिर से repeat की है. Point E is the point of equilibrium where MRS of good X and Y is equal to the price of X by price of Y, or in other words, it could be slope of IC is equal to the slope of budget line or price line. I hope this is clear. Okay, equilibrium point का तो पता चल गया है हमें. अब what if we are left to the point or if we are right to the point? Okay, the first condition is if you are right to the curves. Okay, right में रहोगे आप तो MRS of good X and Y is less than the price of that, which means slope of IC is less than the slope of budget line. It means right में curve ये है हमारा, equilibrium point हमारा ये है. इसके राइट में अगर हम यहाँ इस एरिया की बात करते हैं तो इस एरिया में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दिस टुवर्ड्स द राइट द स्लोप ऑफ आईसी इज लेस देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन. ओके,
नाउ मूविंग टू दी लेफ्ट ऑफ दिस कर्व, इस कर्व के लेफ्ट में अगर ये शेडेड पार्ट जो मैंने बनाया है इसकी बात करेंगे हम, ये वाला कौन सा पार्ट है, हियर द स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, देयरफॉर लेफ्ट और राइट में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है हमारा, वेयर द स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन और द प्राइस लाइन। ओके, जस्ट फॉर द क्विक रिविजन गो थ्रू दिस कंडीशन, टू द लेफ्ट में होंगे तो एमआरएस हमारा ग्रेटर होगा एंड टू द राइट में होंगे एमआरएस हमारा कम होगा, एंड एट पॉइंट ई बोथ विल बी इक्वल। सो अब आपको पता चल गया है इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट ई वेयर द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट गुड एक्स फॉर गुड वाई। गिवन कंडीशंस क्या है, प्राइस एंड इनकम इज ऑलरेडी गिवन टू अस। Now guys, let's understand the rationale behind the two conditions leading to the consumer equilibrium. The very first condition is MRS of good x and y is equal to the px by py, which is the slope of IC is equal to the slope of budget line. अब हम फिगर में देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है और इसके पीछे का क्या रैशनल है। ओके, कैसे जस्टिफाई होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सो as usual, good 2 on y-axis and good 1 on x-axis. AB is my budget line. Now I have 3 indifference curve here. लेकिन मेरा equilibrium point किधर है, at point E, where my slope of IC is equal to the slope of budget line. Okay, जब हम मैं पहली बात करूंगी IC1 की, IC1 के पॉइंट टच कर रहे हैं बजट लाइन पे F and G, but this curve is below my पॉइंट E, इट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट। जब मैंने बात की थी अपनी इससे पहले वाली स्लाइड में, अगर हम पॉइंट के इस E पॉइंट से लेफ्ट में होते हैं, ओके, तो क्या कंडीशन रहती है हमारी कंडीशन इज MRS ऑफ XY इज ग्रेटर देन दी दैट ऑफ द PX by PY, दैट इज स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन द बजट लाइन स्लोप। ओके, तो हम बात करेंगे IC3 की। IC3 क्या है, अबव है। ओके, एक कंडीशन हमने पढ़ी थी, हायर द IC कर्व हायर इज द सेटिस्फैक्शन, बट इन दिस केस विल रूल आउट IC3। व्हाई, अब सोच रहे होंगे IC3 क्यों रूल आउट किया हमने, इसलिए बिकॉज एक कंडीशन क्या थी, बजट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, बजट लाइन का, बजट सेट का, कि जो हमारी कॉम्बिनेशंस है दैट शुड लाई विद इन आवर बजट। ओके, बट दिस IC कर्व इज अबव आवर बजट लाइन, AB से ऊपर है, therefore this combination cannot be attained in our limited budget, therefore we'll rule out IC3. ओके, अब बचा क्या हमारे पास, IC2 एट पॉइंट E हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा। वाई, बिकॉज हियर एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड ऑल्सो अगर IC1 हमारे बजट में आ रहा है लेकिन फिर भी हम इसको रूल आउट करेंगे। वाई, क्योंकि हायर द IC हायर सेटिस्फैक्शन, IC1 जो हमारे IC2 से नीचे है, देयरफॉर इस कर्व पे हमें लोअर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ओके, I have written all the condition and explanation of the above diagram here so that you guys can note it down in your copies. Okay, higher IC means higher satisfaction. IC3 हमने क्यों rule out किया, because it is out of our budget. At point E left, point E के लेफ्ट में बात करेंगे तो कौन से पॉइंट आएंगे हमारे F and G। लेफ्ट में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के हमारे स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, देयरफॉर हम इस किस पॉइंट पे रहेंगे, पॉइंट E पे, विच इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड कंडीशन हियर इज स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अदर रीजन फॉर रूलिंग आउट IC1 इज क्योंकि वो लोअर हमारा कर्व है देन IC2, जितना हायर IC पे होंगे उतनी हायर सेटिस्फैक्शन रहेगी, देयरफॉर विल स्टिक टू IC2, एंड आई होप द रीजन फॉर रूलिंग आउट IC3 इज क्लियर टू यू गाइज। आई एम रिपीटिंग इट अगेन क्योंकि ये हमारी बजट लाइन से बाहर लाई कर रहा था, देयरफॉर नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द कंडीशन नंबर 2 which says IC curve is convex to the origin. Now let's see what's the rationale behind the condition number 2. As you all know or you guys are aware कि convexity of IC का reason क्या है, because its slope which is MRS marginal rate of substitution is diminishing. Okay, that is less the amount of good X or good Y for every successive unit of other good. एक गुड को कम कंज्यूम करेंगे तभी तो दूसरा गुड ज्यादा कंज्यूम करेंगे हम, तो यही रीजन है हमारा MRS हमारा डिमिनिशिंग होता है, देयरफॉर लीडिंग टू द शेप ऑफ कॉन्वेक्सिटी।
Now let me explain the second condition using this diagram here. Again, on y-axis we have good 2 and x-axis we have good 1. Okay, so this is good 1. Now this is my budget line. इसके ऊपर दो IC कर्व है मेरे, IC2 एंड IC3, एंड कॉन्केव शेप में मेरा एक और कर्व है मेरा IC1. अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्सिटी क्यों जरूरी है IC कर्व की, क्यों एक नेसेसरी कंडीशन है. ओके, क्यों कॉन्केव IC कर्व नहीं होगा. नाउ फर्स्ट हम बात करेंगे IC1 की. IC1 कॉन्केव है शेप में बट इट इज टचिंग आवर बजट लाइन. देयरफॉर इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं मानेंगे. इट इज बिकॉज कि इस पॉइंट पे आने के बाद बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट है E, F, G तीनों बजट लाइन पे, मतलब तीनों अटेनेबल पॉइंट है. ओके, लेकिन पॉइंट E की जब हम बात करते हैं, कोई कंज्यूमर इस पॉइंट पे है तो ही कैन मूव टू पॉइंट F एंड पॉइंट G. इन दोनों पॉइंट्स पे ही मूव कर सकता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द हायर IC. IC2 एंड IC3 आर हायर देन IC1. ऊपर है ना इससे, therefore higher the IC, higher is the level of satisfaction. तो अगर कॉन्केव है और इस पॉइंट पे है भी, बजट लाइन को टच भी कर रहा है, therefore इधर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. there are chances the consumer can move from this point to point F और point G. ओके, therefore हमें पता चलता है कि IC1 पे कॉन्केव होने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है यहाँ पे, बजट लाइन पे तो हम अटेन आ रहे हैं, लेकिन दिस पॉइंट इज नॉट स्टेबल बिकॉज द कंज्यूमर हैव द एबिलिटी टू मूव टू द हायर IC हियर. दोनों बाकी IC भी तो बजट लाइन पे ही है हमारे, तो ये भी अटेनेबल पॉइंट्स है. तो व्हाई नॉट द कंज्यूमर मूव टू हायर IC, क्योंकि हायर पे जाएगा तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ये कंडीशन हमने पढ़ी है. देयरफॉर फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट ओनली कॉन्वेक्सिटी ऑफ IC इज द स्टेबल पॉइंट फॉर द इक्विलिब्रियम. जहां कॉन्वेक्स होगा वो ही स्टेबल पॉइंट है, क्योंकि इसके अलावा यहां से मूव नहीं करेगा. स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है द कॉन्वेक्सिटी ऑफ IC. Okay guys, I hope the second condition, the rationale behind the second condition is clear to you guys. Now here are some more questions for you guys to practice from this chapter. Make sure everybody of you comment in the comment section. So here are your questions to tone your brain. Number one question is you guys to comment in the comment section condition of consumer equilibrium. We have discussed two conditions here. Mention both the condition in the comment section. Second is you have to choose the right option from the below. Budget line indicates number A, price ratio, B, utility curve, C, both, and D, none. Third question is according to IC analysis, consumer equilibrium is at dash point. आपको बताना है IC कर्व के एनालिसिस के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे हम अटेन करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट on IC curve, the slope of IC curve tend to dash. And the last for today is attainable combination of good X and Y are drawn on the assumption of prices of X and Y are kept dash. Okay guys, so these are your 5 questions. Make sure you guys revise all the 3 videos and try and answer all these questions in the comment section. And if any doubt guys, please feel free to reach out to me. I'll make sure that I'll clear all your doubts. Apart from that, do not forget to like, share and subscribe. In my next video, I'll be discussing the important questions from this chapter and will solve some of the numericals.